کہ ہم اس کی حضوری میں آ سکیں, اس کی ستائش کر سکیں, اس کے نام کو جلال دے سکیں اور اس کی آواز کو سن سکیں. ہاللیلویا, خداوند کا شکر ہو. آئیے ہم سب اپنے قدموں پر ذرا کھڑے ہو جائیں. ہم خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل, اس کا 16واں باب, اس کی 13ویں آیت سے لے کر 16ویں آیت تک. مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل, اس کا 16واں باب, اس کی 13ویں آیت سے لے کر 16ویں آیت تک. جب یسوع کیسریہ فلپی کے علاقہ میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا, بعض یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں, بعض ایلیا, بعض یرمیا یا نبیوں میں سے کوئی. اس نے ان سے کہا, مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ خداوند کے اس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. آئے چھوٹی سی دعا کرتے ہیں. خداوند آسمانی باپ, خداوند یسوع مسیح کے نام میں تیرے لوگوں کو خداوند اور اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں. خداوند تیرا پاک روح ہماری مدد کرے اور ہم مل کر تیرے کلام کو سیکھیں, اور جب تک ہم تیرے کلام کو سیکھتے رہیں خداوند ہمارے ذہنوں کو روشن کر, ہماری سوچوں اور خیالوں کو اپنی طرف لگا. ابلیس کی ساری دیکھی اور اندیکھی قوتیں یسوع کے نام سے جاتی رہیں اور سارا جلال خداوند کے نام کو ملے. یسوع مسیح کے نام میں آمین. تشریف رکھیے. آج ہم ایک ایسی ہستی کے بارے میں بات کریں گے جس کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا, بہت کچھ لکھا جاتا ہے اور آج تک لکھا جا رہا ہے. یہ وہ ہستی ہے, یہ واحد ہستی جس نے کہا کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوں گے میں ان کے بیچ میں ہوں. یہ وہ ہستی جس نے تاریخ کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. کیسے؟ قبل از مسیح اور بعد از مسیح. یہ وہ ہستی ہے جب اپنے لوگوں کے درمیان میں آ جاتی ہے تو اس کے مسا کی شدت کے سبب سے مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں. ہاللیلویا. اس ہستی کے بارے میں لوگوں کا کیا خیال؟ گزرے وقت میں جب یسوع زمین پر تھا تو اس نے ایک دن پوچھ لیا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں. لوگوں کے خیالات کیا تھے؟ کسی نے کہا ایلیا, کسی نے کہا یرمیا, کسی نے کہا یوحنا بپتسمہ دینے والا, کسی نے کہا نبیوں میں سے کوئی نبی. آج بھی لوگ یسوع کے بارے میں, دنیا یسوع کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ وہ ایک نبی تھا, وہ ایک اچھا انسان تھا, وہ ایک رسول تھا, بس اور وہ کچھ نہیں تھا. جو کچھ آپ لوگ مسیح کے بارے میں کہتے ہیں وہ غلط ہے. صرف وہ ایک اچھا انسان تھا, صرف وہ ایک نبی تھا, صرف وہ ایک رسول تھا, ایک اچھا لیڈر تھا, اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں تھا. یہ دنیا کا خیال ہے. آئیے تھوڑی دیر کے لیے کلام مقدس میں سے ذرا دیکھیں کہ نبی میں اور مسیح میں کیا فرق ہے. کلام میں کئی جگہ کے لوگ وہ حوالے بھی دے دیتے ہیں. آج کل وہ ایک ٹی وی پہ آیا ہوا ہے ایک ذاکر نالائق, وہ کہتا ہے یسوع صرف نبی ہے. کلام میں لکھا ہے وہ نبی ہے؟ وہ صرف ایک نبی ہے. کلام میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کام اور کلام میں قدرت والا کیا تھا جی؟ صرف ایک نبی تھا. آئیے ذرا دیکھیں بائبل کیا کہتی ہے. ایک عام نبی میں اور مسیح میں کیا فرق ہے؟ پرانے عہد نامے میں چلے جائیں. جب ہم پرانے عہد نامے میں جاتے ہیں تو نبی جب کلام کرتا تھا تو کلام کرنے سے پہلے کیا کہتا تھا؟ کس نے فرمایا ہے؟
कौन फरमाता है? कौन फरमाता है? खुदावंद फरमाता है। नबी कलाम करने से पहले क्या कहता था कि खुदावंद क्या करता है? फरमाता है। मसीह क्या कहता है? पता है क्या कहता है? मैं तुमसे सच सच कहता हूं। हालेलुया। नबी कहता है, पुराने अहदनामे में चले जाएं, नबी कहता है, ऐ खुदावंद, ऐ खुदा, मैं तेरा क्या देखना चाहता हूं? मैं तेरा क्या देखना चाहता हूं? जलाल देखना चाहता हूं, मैं तेरा चेहरा देखना चाहता हूं। मसीह कहता है, जिसने मुझे देखा उसने खुदा को देखा। हालेलुया। वो कहता है जिसने मुझे देखा उसने खुदा को देखा। यशायाह नबी कहता है, जब उसने खुदा का जलाल देखा तो वो कहता है कि मेरे होंठ क्या हैं जी? मेरे होंठ नापाक हैं, मैं निजिस लब लोगों में बसता हूं। मैं क्या हूं? नबी, मैं क्या हूं? मेरे लब क्या हैं? निजिस हैं। यीशु कहता है, कौन तुम में से मुझ में गुनाह साबित कर सकता है? कौन तुम में से मुझ में गुनाह साबित कर सकता है? जोर से बोलने में कोई मसला तो नहीं है? बोले। कौन तुम में से मुझ में गुनाह साबित कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। नबी परेशान हो गया। एलिया नबी परेशान होकर भागा। क्या किससे डर के भागा? किस चीज से डर के भागा? कि मुझे कोई क्या ना कर ले, मुझे कोई मार ना दे। जब उसने बाल के नबियों को कत्ल किया तो किससे डर के भागा? मलका से क्या हो गया? डर के दूसरे मुल्क, दूसरी शहर में, दूसरी जगह में क्या हो गया? भाग गया। यीशु ने क्या किया? मेरी और आपकी खातिर मौत की परवाह किए बगैर मौत को क्या कर लिया? क्या कर लिया? कबूल कर लिया। हालेलुया। तो फर्क है मसीह में और नबी में। फर्क है। अब आप खुद, जब मैं आपको बताऊंगा, आप खुद अपनी जुबान से कहेंगे कि ये कौन था। किसी नबी ने ये नहीं कहा, किसी शख्स ने ये नहीं कहा कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में हूं। यीशु ने सिर्फ ये बात कही। नबी जब दुनिया से जाते थे तो उनको अपने लोगों की क्या होती थी? फिक्र होती थी। दूसरे नबी को क्या कर देते थे? महसूस करते थे कि ये आएगा और ये आइंदा के बाद क्या करेगा? संभालेगा। यीशु ने कहा, मैं दुनिया पर गालिब आया हूं, खातिर जमा रखो, मैं अब से हमेशा तक तुम्हारे क्या हूं? मैं तुम्हारे क्या हूं? यीशु हमारे क्या है? यीशु हमारे क्या है? जोरदार ताली यीशु के लिए। यह है उसकी शख्सियत। उसने कहा, उसने एक लफ्ज इस्तेमाल किया जो खुदा ने पुराने अहदनामे में किया था। आपको पता है कौन सा? कोई बता सकता है कौन सा? क्या कहा यीशु ने? जिंदगी की रोटी, हमेशा की जिंदगी, वो रोटी जो आसमान से उतरी, आबे हयात। सिर्फ कह देते तो अगर कुछ करके ना दिखाता तो फायदा कोई नहीं था। लोग बातें करते। ये मैं हूं की ताकत एक जगह खुदा ने, जब यीशु ने कहा ना मैं हूं, तो क्या हुआ आपको पता है? जब यीशु को लोग पकड़ने के लिए आए, उसको चोर और डाकू समझकर क्या आए? पकड़ने के लिए आए। यीशु ने क्या कहा? वो लफ्ज इस्तेमाल किया जो पुराने अहदनामे में खुदा ने किया था। जब उसने मैं हूं कहा तो वो लोग क्या हो गए? मुंह के बल क्या हो गए? गिर पड़े। वो मैं हूं की ताकत को समझ ही नहीं सके। हालेलुया। कौन कहता था पुराने अहदनामे में कि मैं जो हूं सो हूं? कौन कहता था? सिर्फ और सिर्फ खुदा की ताकत थी। खुदा ये कहता। किसी नबी ने ये नहीं कहा कि बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? आराम दूंगा। कौन कहता है? मसीह कहता है। तो आप क्या समझे अब इन बातों से? आप क्या समझे कि मसीह कौन है? मसीह कौन है? मसीह खुदा है। हालेलुया। मसीह क्या है? खुदा के अलावा कोई शख्स इस तरह की बात नहीं कर सकता। कोई किसी के बीच में, किसी के दरमियान में मौजूद नहीं हो सकता। कोई किसी को हमेशा की जिंदगी नहीं दे सकता। यीशु ने कहा, मैं आया हूं वो जिंदगी पाएं, बल्कि कैसी जिंदगी पाएं?
کثرت کی زندگی پائیں. انسان ایسے کہہ سکتا ہے؟ انسان ایسے کہہ سکتا ہے؟ عام نبی ایسے کہہ سکتا ہے؟ یہ اختیار صرف اور صرف کس کو حاصل ہے؟ ہمارے خداوند یسوع مسیح کو حاصل ہے. ہاللیلویہ، پریز جیسس. یہ ہے مسیح کی شخصیت. یسوع مسیح، سنیے گا غور سے، اگر یسوع مسیح زمین پر آتے اور آتے ہی اپنے آپ کو کہہ دیتے کہ میں خدا ہوں، تو لوگ کیا کرتے؟ ان کو لوگ کیا کرتے؟ پتھر مارتے. خدا ذہنوں کو اور عقلوں کو کیا کرتا ہے؟ دلوں کو کیا کرتا ہے جی؟ جانتا ہے. خدا ذہنوں کو اور سوچوں کو جانتا ہے. اس نے غیر لوگ کہتے ہیں آپ کے یسوع نے تو کہیں بھی بائبل میں نہیں کہا کہ میں کیا ہوں؟ خدا ہوں. کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. آپ کیسے کہتے ہو؟ تو میں ان کو یہ مثال دیتا ہوں. یسوع نے کہیں بھی نہیں کہا کہ کوئی بھی شخص اگر میں جا کے باہر کہوں میں ایلیا ہوں تو لوگ مجھے کیا کریں گے؟ ماریں گے. یسوع کا کردار بتا رہا ہے کہ وہ کون ہے. یسوع کا کردار بتا رہا ہے کہ وہ کون ہے جی؟ یسوع کا کردار بتا رہا ہے کہ وہ خدا ہے. اس کی زبان نہیں کہہ رہی کہ وہ خدا ہے. آپ کو پتا ہے سن 60 کے عرصے میں، پرانے وقت میں، جب ملکہ برطانیہ پاکستان آئی تھی تو ملکہ نے کہیں بھی، اس وقت ٹیلی ویژن ٹی وی تو بہت کم تھے، اخبار ہوتے تھے اور کیا ہوتے تھے؟ خبریں سننے کے لیے ریڈیو ہوتے تھے. ملکہ نے کہیں بھی اپنی زبان سے کیا کہا کہ میں ملکہ برطانیہ ہوں؟ اس نے نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ ملکہ برطانیہ نے کیوں نہیں کہا کہ میں برطانیہ کی ملکہ ہوں؟ اس کو یہ کہنے کی ضرورت ہے؟ اس کو یہ کہنے کی ضرورت ہے؟ نہیں. کیونکہ ملکہ اپنے لباس سے، ملکہ اپنے کردار سے، ملکہ اپنے چال چلن سے جب ملکہ نظر آتی ہے تو اس کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاللیلویہ. جب میرا یسوع اپنے کاموں سے، اپنی قدرت سے، اپنے اختیار سے اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے تو احمق اس طرح کا تقاضا کرتے ہیں نا کہ اپنی زبان سے کہہ. اس کا کردار بتا رہا ہے کہ وہ کیا ہے. ہاللیلویہ. آج بھی یسوع وہی شخصیت ہے، وہی خدا جو لوگوں کے درمیان میں کیا کر رہا ہے؟ کام کر رہا ہے. لوگوں کو کیا دے رہا ہے؟ زور سے بولیے، میرے ساتھ ہیں آپ لوگ؟ زور سے بولیے. یسوع کیا دیتا ہے لوگوں کو؟ اور کیا دیتا ہے؟ نجات دیتا ہے. لوگوں کی نجات، لوگوں کو نجات کی ضرورت ہے. پتہ ہے کیوں؟ کلام میں لکھا ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے کیا ہے؟ محروم ہے. سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے کیا ہے جی؟ سب نے گناہ کیا. اور گناہ کی وجہ سے، غور سے سنیے گا میری بات، ہر ایک ذہن، ہر ایک آنکھ خدا کے کلام کی طرف. انسان گناہ گار ہے اور انسان کو کس کی ضرورت ہے؟ نجات کی. کس کی ضرورت ہے؟ انسان کو. کیوں نجات کی ضرورت ہے؟ اس وجہ سے نجات کی ضرورت ہے کہ انسان کی جو روح ہے نا، انسان کے اندر جو روح ہے، پہلی بات ہے کہ وہ کیا ہے؟ مردہ ہے. کیا ہے وہ؟ مری ہوئی ہے، یسوع کے بغیر ہے. اور مردہ ہونے کے سبب سے، غور سے سنیے گا، مردہ ہونے کے سبب سے وہ بہت گہری تاریکی کے اندر ہے. انسان کی روح، ہر انسان کی روح جو یسوع کے بغیر ہے، ہر انسان کی روح جو یسوع کے بغیر ہے، گہری تاریکی کے اندر ڈوبی ہوئی ہے. بہت گہری تاریکی ہے، بہت گہری تاریکی ہے، بہت گہری تاریکی ہے. اور تاریکی اتنی گہری ہے، اتنی گہری ہے کہ سورج کی روشنی بھی اگر اس پہ پڑے تو وہ دور وہ نہیں ہو سکتی. آپ گناہ گار لوگ سارا دن دھوپ میں نکلتے ہیں نا، سورج میں نکلتے ہیں، پھرتے ہیں، وہ تبدیل ہوتے ہیں. تاریکی ہے تو دور ہو جانی چاہیے نا، لیکن وہ نہیں ہوتی. بہت گہری تاریکی ہے. لیکن جب یسوع کے کلام کی روشنی، جب یسوع کی خوشخبری کی روشنی، جب اس کے کلام کی باتیں زندگی پر پڑتی ہیں، اس گناہ گار کے کانوں میں پڑتی ہیں، تو وہ روشنی اس کے اندر جاتی ہے. ایسی ہوتا ہے جیسے کہ اندھیرا کمرہ ہے اور آپ نے جو ہے وہ دروازہ کھول دیا تو روشنی کیا چلی گئی؟ اندر چلی گئی. جب کلام کی باتیں کانوں میں پڑتی اور دل میں جاتی ہے تو وہ دروازہ کیا ہوتا ہے؟ وہ دروازہ کیا ہوتا ہے؟ کھل جاتا ہے. اور کلام کی روشنی جو ہے، یسوع جو ہے، اس کی روشنی جو ہے وہ اس کے اندر کیا چلی جاتی ہے؟ اس کے اندر
आ जाती है और वो कहता है मैं गुनाहगार था और अब खुदा ने मुझे क्या कर दिया है, नजात दे दी है। मैं गुनाहगार था, खुदा ने मुझे क्या कर दिया है, नजात दे दी है। हालेलुया। यीशु, आज भी जितने लोग हैं दुनिया के अंदर, जितने भी लोग हैं, सब तारीकी में डूबे हुए हैं, लेकिन जब आप उनको कलाम सुनाते हैं, जब कलाम की खुशखबरी की रोशनी उन तक पहुंचती है तो उनकी रूह क्या हो जाती है, जाग जाती है। मुर्दा रूह क्या होती है। हालेलुया। ये है उसके कलाम की कुदरत, ये है हमारा यीशु। खामोश हो जा बच्चों, ये है उसका कलाम। अब हम देखेंगे कि उसके कलाम का इख्तियार क्या है, वो यीशु और क्या हस्ती है, उसकी कुदरत और इसका इख्तियार कहां तक है। मैं चाहता हूं कि एक हवाला हम देखें, एक हवाला देखेंगे कलाम में से, इब्रानियों का खत, उसका पहला बाब और तीसरी आयत। इब्रानियों का खत, उसका पहला बाब और तीसरी आयत, गौर से सुनिएगा। वो उसके जलाल का परताव और उसकी जात का नक्श होकर सब चीज़ों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। हालेलुया। यीशु के बारे में लिखा है कि वो अपनी कुदरत के वसीला से सब चीजों को क्या है, अपनी कुदरत के वसीला से सब चीजों को क्या करता है, वो संभालता है। यहां जरा हम एक लफ्ज पे गौर करेंगे कि संभालता है। ये जो संभालना है ना, कि वो संभालता है, इसका मतलब है, बाइबल की जो असल जुबान है उसमें मैंने इसका मतलब देखा, उसका मतलब है लेकर चलना और कंट्रोल में रखना। लेकर चलता है, वो क्या करता है, सब चीजों को अपनी कलाम के इख्तियार से क्या करता है, वो संभालता है और लेकर चलता है। कैसे, कैसे लेकर चलते। एक और हवाला हम देखेंगे, कुलसियों के खत का पहला बाब और उसकी 17वीं आयत। कुलसियों का खत, उसका पहला बाब और उसकी 17वीं आयत। और वो सब चीज़ों से पहले है और उसी में सब चीज़ें कायम रहती हैं। हालेलुया। वो सब चीजों से क्या है, वो सब चीजों से क्या है, पहले है, और सब चीजें उसमें क्या रहती हैं, कायम रहती हैं। बात गौर से सुनिएगा कि किस तरह से सब चीजें उसमें कायम रहती हैं, सब चीजें उसके अंदर कायम रहती हैं। अमाल की किताब में एक बड़ी जबरदस्त आप देखेंगे कि किस तरह से मसीह का इख्तियार क्या है, मसीह क्या है। फिर उसके बाद मैं आपको एक बात बताऊंगा। अमाल की किताब, उसका 17वां बाब और उसकी 28वीं आयत देखें जरा भाई। मैं चाहूंगा कि 25वीं आयत से पढ़ें, गौर से सुनिएगा कि कलाम के एक एक लफ्ज को गौर से सुनिएगा। अमाल की किताब, उसका 17वां बाब 25वीं आयत से 28वीं आयत तक। ना किसी चीज का मुहताज होकर आदमियों के हाथों से खिदमत लेता है, क्योंकि वो तो खुद सबको जिंदगी और सांस और सब कुछ देता है। 28वीं आयत पढ़ते हैं अब। क्योंकि उसी में हम जीते और चलते फिरते हैं। उसी में हम जीते और क्या करते हैं, चलते फिरते। चलते फिरते हैं। उसी में हम जीते और चलते फिरते हैं। गौर से सुनिएगा। और वो और मौजूद है। और क्या है, मौजूद है। 25वीं आयत में लिखा है कि वो सबको क्या देता है, जिंदगी और सांस देता है। कौन देता है जिंदगी और सांस, आपको कौन दे रहा है, खुदा है। किसको दे रहा है, लिखा है सबको। वो सबको क्या देता है, जिंदगी और सांस देता है। और उसी में हम, सिर्फ एक नहीं, सिर्फ ईमानदार नहीं, सारी दुनिया, उसी में हम क्या करते हैं, चलते फिरते हैं। किसमें, किसमें, यस्सु में। किसमें, यस्सु में। लेकिन पढ़ा ना हमने कुलसियों में कि उसी में सब चीजें क्या रहती हैं, कायम रहती हैं। और अमाल की किताब में पढ़ा कि उसी में हम क्या करते हैं, चलते और फिरते हैं, यानी कि उसी की वजह से हम चलते और फिरते हैं। और वही सबको जिंदगी और क्या देता है, सांस दे, जिंदगी और सांस सबको देता है वो। एक हवाला और देखें जरा,
नहमिया की किताब उसका 9वां बाब और उसकी 6ठी आयत। कलाम पढ़ना नहीं छोड़ूंगा मैं, चाहे दुनिया की कोई ताकत, कोई लाइट हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। हालेलुया। नहमिया की किताब उसका 9वां बाब और उसकी 6ठी आयत। तूने आसमान और आसमानों के आसमान को और उनके सारे लश्कर को और ज़मीन को और जो कुछ उस पर है और समंदरों को जो कुछ उनमें है बनाया। तू उन सबों का परवरदिगार है और आसमान का लश्कर तुझे सिजदा करता है। सारा कुछ उसके क्या है? कंट्रोल में है। आसमान का सारा लश्कर, जमीन का सारा लश्कर उसके क्या है? इख्तियार में है। और गौर से सुनिए, बातें नहीं, उसके क्या है? इख्तियार में है, उसके कंट्रोल में है। कलाम में लिखा है कि हमने क्या पढ़ा कि वो अपनी कुदरत से सब चीजों को क्या करता है? संभालता है। अपनी कुदरत से सब चीजों को क्या करता है? वो संभालता है। कौन संभालता है? यीशु संभालता है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर वो ये चीजें, अगर वो संभालना छोड़ दे, जो काम अपनी वो कलाम और कुदरत के इख्तियार से वो जो उसने संभाला हुआ है और वो जमीन को वो लेकर चल रहा है, हर एक चीज को अगर वो छोड़ दे तो क्या होगा? आप में से कोई बताएगा? अगर वो सारे काम को जो वो कर रहा है अपनी कुदरत के इख्तियार से, सारी चीजें उसने संभाली हुई हैं, अगर वो छोड़ दे तो क्या होगा? अगर वो छोड़ दे तो क्या होगा? अगर वो छोड़ दे तो क्या होगा? आप बता सकते हैं? अयूब नबी की किताब देखें जरा हम, उसका 34वां बाब। ये मैं ना कह दूं कहीं, अगर मेरी बात पे आप यकीन करेंगे, कलाम की बात पे यकीन करेंगे। हालेलुया। अयूब की किताब उसका 34वां बाब 14 और 15 आयत। गौर से सुने, एक एक लफ्ज को गौर से सुने, क्योंकि खुदा एक बात गौर से। बोलता है। 34 बाब 14 और 15 आयत। अगर वो इंसान गौर से लगाए, सुने सुने सुने। अगर वो इंसान से अपना दिल लगाए, अगर वो अपनी रूह और अपने दम को वापस ले ले, तो तमाम बशर इकट्ठे फना हो जाएंगे। क्या लिखा है? अगर वो अपना दम वापस ले ले तो तमाम बशर क्या हो जाएगा जी? तमाम बशर क्या हो जाएगा? तमाम बशर क्या हो जाएगा? फना हो जाएगा। ज़बूर 104 की 29वीं आयत में लिखा हुआ है, और जब तू अपना दम रोक लेता है, 104 की 29वीं आयत में लिखा है, तो जब तू अपना दम रोक लेता है तो ये क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। जब तू इनका सांस रोक लेता है तो ये क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। कौन है इस दुनिया को संभाले हुए? किसने संभाला हुआ है? हर एक चीज, गौर से सुने, हर एक चीज जो इस जमीन पर होती है उसको किसने कंट्रोल किया हुआ है? उसको खुदा ने कंट्रोल किया हुआ है। आपको पता है कि जब बारिश होती है, बर्फबारी होती है, तो हम क्या समझते हैं कि सब कुछ क्या है? कुदरती है, ये खुद ब खुद हो जाता है। आमतौर पे लोग क्या करते हैं? ये समझते हैं। आइए जरा हम ये भी देखें कि इसको किसने कंट्रोल किया हुआ है। अयूब की किताब उसका 37वां बाब, उसकी जरा 6ठी आयत से लेकर 13वीं आयत तक पढ़ेंगे। बातें ना करें, बातें ना करें, क्योंकि वो बर्फ को फरमाता है कि तू जमीन पर गिर। क्योंकि वो बर्फ को फरमाता है। कौन फरमा रहा है बर्फ को? कौन फरमा रहा है बर्फ को? वो बर्फ को फरमाता है। ये कुदरती नहीं, ये खुद ब खुद नहीं होता। कौन हुक्म देता है? खुदा हुक्म देता है। हालेलुया। यीशु हुक्म देता है, जिसमें सब चीजें क्या होती हैं? कायम रहती हैं। हालेलुया। वो बर्फ को फरमाता है कि जमीन पर गिर। जी अगली आयत। इसी तरह वो बारिश से, इसी तरह वो बारिश से कहता है, और मूसलाधार मी से कहता है। वो हर आदमी के हाथ पर मोहर कर देता है। वो हर आदमी के हाथ पर क्या कर देता है? मोहर कर देता है। जी अगली आयत। ताकि सब लोग जिनको उसने बनाया है इस बात को जान लें। सब परिंदे गारों में घुस जाते हैं और अपनी अपनी मान में पड़े रहते हैं। यस। आंधी जनूब की कोठरियों से और सर्दी शमाल से आती है। हालेलुया। आंधी जनूब की कहां से? कोठड़ियों से। आंधी भी किसका हुक्म मानती है? आंधी तूफान किसका हुक्म मानते? कुछ याद आता है? कोई वाकया याद आ रहा है? जल्दी से बताएं, जल्दी से। जब यीशु झील पर था तो उसने तूफान को क्या दिया? उसने तूफान को हुक्म दिया और तूफान क्या हो गया? थम गया। हालेलुया।
आंधियां और तूफान भी उसका हुक्म क्या करते हैं, सर्दी शुमाल से आती। कौन लाता है, कौन भेजता है, कौन भेजता है? दुनिया को बताओगे कि हम वो उस यीशु को नहीं, उस यीशु को, अब उस यीशु की पूजा करोगे क्या लोग? अब लोगों को बताओगे कि उस यीशु की पूजा ना करें जिसको ऐसे मूर्त बना के तो उसको खड़ा। क्या ये यीशु, क्या पत्थर का यीशु ये कर सकता है? क्या पत्थर का यीशु ये कर सकता है? क्या पत्थर दुनिया पर हाकिम हो सकता है? क्या पत्थर किसी पर हुकूमत कर सकता है? आइए देखें यीशु किस तरह से हुकूमत करता है। अय्यूब की किताब उसके 38वें बाब की 12वीं आयत जरा देखें। अय्यूब की किताब के 38वें बाब की 12वीं आयत, बहुत खूबसूरत बात लिखी हुई है वहां पे। क्या तूने अपनी उम्र भर कभी सुबह पर हुक्मरानी की? ओ बताओ खुदा को। वो कहता है क्या तूने, वो सवाल कर रहा है, क्या तूने कभी उम्र भर सुबह पर हुक्मरानी की है? कभी किसी ने की है सुबह पर हुक्मरानी? सुबह पर हुक्मरानी कौन करता है? सुबह किसके हुक्म से होती है? बोलें, किसके हुक्म से होती है? रात किसके हुक्म से होती है? शाम किसके हुक्म से होती है? मौसम किसके हुक्म से बनते हैं? और किसके हुक्म से ये होता है सब कुछ? हालेलुया। सारा जलाल यीशु के नाम को, जोरदार ताली यीशु के लिए। क्या ये कोई छोटा इख्तियार है? क्या हम जिस खुदा की प्रस्तिश करते हैं ये कोई छोटी बात है? क्या वो खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं ये कोई छोटी बात है? जिस खुदा को हम बाप कहते हैं ये कोई छोटी बात है? हमारा बाप इतना बड़ा, पूरी दुनिया के कायनात को, पूरी एक एक चीज को अपने इख्तियार में लिए हुए, हम उसके बेटे और बेटियां हैं, हम उसके फर्जंद हैं, हम जो निजात याफ्ता हैं हम उसके फर्जंद हैं। वो अपने बच्चों को दुख में नहीं देख सकता, वो अपने बच्चों को तकलीफों में नहीं देख सकता, वो अपने बच्चों को मुसीबत में नहीं देख सकता। और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने देखा, हमें कलाम क्या बता रहा है कि सारी चीजों को वो क्या करता है, अपनी कुदरत के कलाम से क्या करता है, संभालता है। कौन संभाल रहा है? सिर्फ और सिर्फ यीशु। और कलाम में लिखा है यीशु मसीह कल और आज बल्कि अबद तक क्या है? यीशु मसीह कल और आज अबद तक क्या है? हालेलुया। क्या ये छोटी बात है जब हम उस खुदा को बाप कहते हैं कि ऐ हमारे? क्या ये आपके लिए कोई छोटी बात है? इसलिए जब खुदा के लोग गलत कामों में पड़ जाते हैं ना, खुदा को गुस्सा चढ़ता है कि मैं वो नहीं हूं जिसके नाम से तुम पहचाने जा रहे हो। मैं तो हर एक चीज पर इख्तियार रखने वाला खुदा हूं, और तुम्हारी निस्बत गैर कौमों में मेरे नाम पर क्या बका जाता है? तुम्हारी निस्बत मेरे नाम पर गैर कौमों में कुफर बका जाता है। क्या हम कुफर बकने का सबब तो नहीं? आज जैसे यीशु ने अपने शागिर्दों से पूछा था ना कि लोग तो मेरे बारे में क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कोई यर्मिया है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ। शागिर्दों से कहा तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? आज खुदावंद, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बुजुर्ग, आज यीशु तेरे से ये सवाल करता है कि दुनिया तो मेरे बारे में ये कहती है कि मैं ये हूं, तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? क्या मैं कादिर मुतलक नहीं हूं? क्या मैं वो नहीं हूं जिसने तेरी खातिर जान दी है? तो फिर भी मज़ारों पर जाता है, तो फिर भी मज़ारों पर जाती है, तो फिर भी पीरों फकीरों के पास जाता है। तूने क्यों आबे हयात के चश्मे को तर्क कर दिया है मेरे बेटे और मेरी बेटी? तूने क्यों आबे हयात के चश्मे को तर्क कर दिया? और तूने क्यों अपने लिए शिकस्ता हौज खोद रखे हैं? गैर माबूदों के पास जाने वालों का गम क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। गैर माबूदों के पास ना जा मेरे बेटे और मेरी बेटी। मैं हूं जो अपनी कुदरत के कलाम से सारी कायनात को क्या करता हूं? संभालता हूं। हालेलुया। मैं हूं जो तुझे शिफा दे सकता हूं। मैं हूं। यीशु कहता है सिर्फ और सिर्फ कौन है? मैं हूं, उसके अलावा और कोई नहीं। हालेलुया। जोरदार ताली यीशु के लिए। कोई नहीं कर सकता। आए, यह मौका है दुनिया की चीजों को छोड़कर, दुनियावी चीजों को छोड़कर। कलाम में पता क्या लिखा है? इस जहान का जो खुदा है ना, उसने लोगों की अक्लों को क्या कर दिया है? अंधा कर दिया है। क्या? ताकि जलाल की खुशखबरी उनके दिलों पर, उन पर क्या हो ना पड़े। जरा भाई मैं कहता हूं, ये आखिरी आयत है, यह है गालिबन 2 कुरिन्थियों की 4 बाब की 3री आयत है।
पौलुस रसूल के नाम दूसरा खत है करंथियों का, उसका 4 बाब और उसकी 3 आयत है। और अगर हमारी खुशखबरी पर पर्दा पड़ जाए, पड़ा है, तो हलाक होने वाले ही के वास्ते पड़ा है। अगर हमारी खुशखबरी पर पर्दा पड़ा हुआ है तो किन के वास्ते पड़ा हुआ है? हलाक होने वालों के वास्ते। अगली आयत, शाबाश। यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है, यस, ताकि मसीह जो खुदावन की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। हालेलुया। हालेलुया। इस जहान के खुदा ने उनकी अक्लों को क्या कर दिया है? अंधा कर दिया है, ताकि जलाल की जो यसु जो जलाल की सूरत है उसकी खुशखबरी की रोशनी उन तक ना पड़े। शैतान चाहता है कि लोगों की रूह तारीकी में रहे, शैतान चाहता है कि लोगों की रूह तारीकी में रहे और तारीकी में रहे और तारीकी में रहते 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 वो इस दुनिया से चला जाए। वो चाहता है जहन्नम भर जाए, वो चाहता है जहन्नम क्या हो जाए? भर जाए लोगों से। लेकिन खुदा का कलाम, खुदा के खादिम, हम ये चाहते हैं, मेरी ये ख्वाहिश है कि जहन्नम खाली रहे और आसमान खुदा के लोगों से भर जाए। हालेलुया। अगर हम में से कोई जिसने खुदा यीशु मसीह को कबूल नहीं किया हुआ, आज वक्त है। कलाम में लिखा है आज नजात की घड़ी है, और लिखा है कि अगर तू अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे तो क्या पाएगा? नजात पाएगा। यीशु मसीह के खुदावंद होने का इकरार करें। जिसने तौबा नहीं की है, जिसने तौबा नहीं की है, जिसने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया है, वो यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में कबूल करे और कुदरत वाले खुदा के पास, उस खुदा के पास आ जाए जिसने जो अपनी कुदरत के कलाम से सारी चीजों को क्या करता है? संभालता है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे। आमीन।